Very good afternoon to all. Now we shall start the lecture. Now things are visible. I just shared the Microsoft whiteboard. Now, in the last lecture I discussed about that is a heavy side unit step function. So we have to finish that part, heavy side unit step function. The format which was supposed to, or I'm considering you people are remember, that is how to remember that is a question belongs to heavy side unit step function. So just want to solve few questions on the basis of a heavy side unit step function. So hope they will understand our. Now the first question, before I have to start the questions, I'm just going to represent. The question is a format. Always remember e raised to minus as into f of s. E raised to minus as into f of s. Please remember this function. E raised to minus as into f of s. You have to compute the value with e raised to minus as, so that you will get the value of a and f of s is compared with the function. So you have to calculate the Laplace inverse of that respective function. So one by one, the first question we have to solve here is e raised to 4 minus 3s, 4 minus 3s upon s plus 4. Sorry, uh, not taking this question first. 8 into e raised to minus 3s upon s square plus 4. So very easy question is given. We have to solve this question. So we have to compare with this part with e raised to minus with e raised to, or the solution compare, that is 8 into e raised to minus 3s upon s square plus 4 is compared with e raised to minus as into f of s. So by default you will get the value of e raised to minus as is compared with e raised to minus 3s. Therefore a is equal to 3. A is equal to 3. So f of s will be the remaining terms will be f of s, so 8 upon s square plus 4. So we have to simplify Laplace inverse of this part f of s, which is equal to 4 into Laplace inverse of 2 upon s square plus 4. So that Laplace inverse of f of s, you will getting what? 4 into sine of 2t. 4 into sine of 2t you are getting. So this is a Laplace inverse of that respective function, but we have to write that function in the format. So as I told about how to write a result. So Laplace inverse of 8 into e raised to minus 3s upon s square plus 4. We have to write this part. So 8 into e raised to minus 3s upon s square plus 4, we have to write, you have to choose this function. So 4 into sine of 2, जहाँ पे भी t लिखोगे, you have to write t minus a. A is what? That is 3. So t minus 3 into heavy side of t minus 3. This is your final result. Final result में t minus 3 और into h of t minus 3 या t minus a into h of t minus a का फॉर्मेट मेंटेन करना है. तो
please try to understand this. How can we simplify this question? Very easy question. Just at the end you have to write t minus a. A is 3, so you have to write 3. Suppose if the question is comes like a must be 4, you have to write t minus 4 as it is. Now next question I'm taking, so you will understand. The second one, e raised to 4 minus 3s upon s plus 4 raised to power 5 by, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट इससे कंफ्यूजन नहीं लाना है कुछ भी। यहाँ पे अब तक पावर हमको प्रॉपर पावर में आता 5 3 2 समथिंग वॉट एवर। सो फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर विथ दिस पार्ट, कंपेयर करना है इसको पार्ट के साथ। जस्ट अ सेकेंड। So we have to simplify this part. E raised to 4 into e raised to minus 3s upon s plus 4 raised to power 5 by 2. Just simplifying this part. So you will getting e raised to 4 is treated as a constant term. You have to compare it with this. That is, I'm comparing this part with e raised to minus as, e raised to minus as into f of s. So that you will getting e raised to minus as is equal to e raised to minus 3s. Therefore, a is equal to 3. This 4 treated as a constant, so don't consider this term. Please try to understand. ये कांस्टेंट है, कंपेयर होगा ई रेस टू माइनस 4 माइनस 3 था, इसको हम लोग सेपरेट करके लिखे हैं। सो माई एफ ऑफ एस विल बिकम्स व्हाट, एफ ऑफ एस विल बी ई रेस टू 4 अपॉन एस प्लस 4 raised to power 5 by 2. Now again we have to take the Laplace inverse. So the Laplace inverse of f of s, which is equal to लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जैसे ही लूंगा तो एस के साथ प्लस 4, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। सो ई रेस टू 4 एज इट इज आउटसाइड, एस प्लस 4 is there, so I'm just taking e raised to minus 4t. Remaining is that is as it is Laplace inverse of 1 by s raised to power 5 by 2. 1 by s raised to power 5 by 2. Power 5 by 2, as we remember, that is Laplace of t raised to n is equal to n factorial upon s raised to n plus 1. खाली यहाँ पे अगर ऑर्डर देखोगे, मतलब वैल्यू देखोगे तो 5 by 2 है। सो सच ए टर्म्स लाइक 5 by 2, 3 by 2, जो अपना बीटा गामा फंक्शन जो सेम 2 में टॉपिक होता है, जो गामा फंक्शंस, उससे बेसिस पे हमको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा वो टर्म को। So always remember, or always know, that is how to simplify such a terms like 5 by 2, 3 by 2, or such a kind of a terms. So we must require s raised to 5 by 2 is there, s raised to 5 by 2 is there, तो हमको 5 by 2 गामा ऑफ 5 by 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना रहेगा हमको, because if I have to write gamma of 5 by 2, please remember this part. Gamma of 5 by 2, we can simplify this part as a 3 by 2 into 1 by 2 into gamma of 1 by 2, that is equal to root of pi. ये टर्म आपको मिलता है, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। 5 by 2 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेटिंग 3 by 2, 1 by 2, गामा ऑफ 1 by 2, मतलब हाफ हाफ रिड्यूस करते जाओगे आप, मतलब 5 by 2 minus 1, that is you will getting 3 by 2. 3 by 2 minus 1, you will getting 1 by 2, and 1 by 2 minus 1, while you applying, that is you getting minus half. But gamma of minus half is not exist, so we can write that is a gamma of half, or we can write directly root of pi. So please remember, this is a expression of this part. So I'm just applying, this is e raised to 4 into e raised to minus
4t upon gamma of phi by 2 into Laplace inverse of gamma of phi by 2 upon s raised to phi by 2, s raised to phi by 2. So what we are getting, what is the Laplace transform of this part? ये Laplace transform किसका होगा? So the Laplace transform of this part we have to write e raised to 4 into e raised to minus 4t upon gamma of phi by 2 into t raised to 3 by 2, t raised to 3 by 2. Because when we have to apply this part, so hope things are clear. T raised to 3 by 2 का लाप्लास अगर निकालोगे आप, so you will getting that similar concept. You have to apply. So 3 by 2, sorry, it's my mistake. We are not supposed to write. एक मिनट, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ हुआ है इस चीज़ का. गामा ऑफ 3 by 2, gamma of 3 by 2, then it will becomes so that when we have to expansion, एक मिनट, expansion में थोड़ा सा गड़बड़ मैंने हो गया हमारे साइड से. Always remember, very easy it is actually. गामा ऑफ 5 by 2 ही जैसे है, तो you have to expand by 5 by 2, 3 by 2, 1 by 2 and root of pi. But here we have to apply gamma of 3 by 2 is there, suppose, so 3 by 2, 1 by 2 and root of pi, मतलब लास्ट वैल्यू माइनस पाई आता है इसके लिए. अभी यहाँ पे जो चीज़ हम लोग को अप्लाई करना है वो वही रूल अप्लाई करना है. जस्ट सी 3 by 2, देखो n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस वन, वैल्यूज आर s पावर इन वैल्यूज कैसे हैं 5 by 2, 3 by 2 ऐसे वैल्यूज हैं. इसके लिए फैक्टोरियल आप यूटिलाइज नहीं करोगे. फॉर एग्जांपल अगर आपको लाप्लास ऑफ t रेस टू 7 by 2 का हमको कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू राइट 7 by 2, बट 7 by 2 फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं होता है. इसकी वजह से इसको लिखते हैं गामा ऑफ 7 by 2 अपॉन एस रेस टू 7 by 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 by 2. ये रिजल्ट आएगा इसका. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारा 1 अपॉन एस रेस टू 5 by 2, तो 5 by 2 माइनस 1 कितना कर होएगा अपना 3 by 2, मतलब ऊपर कितना आना चाहिए हमारे लिए 3 by 2 वैल्यू आना चाहिए. तो 3 by 2 ऊपर लाने के लिए 3 by 2 से गामा ऑफ 3 by 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, गामा ऑफ 3 by 2 से डिवाइड भी करोगे, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट हमको मिलता है. सो दैट you are getting that is this part as a e raised to 4 into e raised to minus 4t upon gamma of 3 by 2 into this part is directly we can write t raised to 3 by 2, because जैसे इसका लाप्लास अगर आप निकालोगे तो लाप्लास ऑफ टी रेस टू 3 by 2 का फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पे 3 by 2 फैक्टोरियल, बट 3 by 2 वैल्यूज है तो रियल रूट्स नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 by 2 फैक्टोरियल की बजाय क्या लिखेंगे गामा ऑफ 3 by 2 अपॉन एस रेस टू 3 by 2 प्लस 1, सो यूल गेटिंग एस रेस टू 5 by 2. और तो उसीलिए यहाँ पे अपना हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय गामा ऑफ 3 by 2 किया है. फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सिर्फ इस रिजल्ट को, तो हमको रिजल्ट आ जाएगा. सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी रहता है. इसको इन दोनों टर्म्स को चाहिए तो फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे या केप्ट एज इट इज रखें. ई रेस टू 4 इंटू ई रेस टू माइनस 4t अपॉन 3 by 2 रिड्यूस करते जाना है माइनस 1 से. फर्स्ट n एज इट इज देन n माइनस 1, तो 1 by 2 हो जाएगा. फिर उसको भी माइनस 1 करोगे तो बाई 2 माइनस 1 क्या मिलता है आपको माइनस हाफ मिलेगा, लेकिन माइनस हाफ हम लिखते नहीं, तो उसको एज इट इज गामा ऑफ 1 by 2 के से ही रिप्रेजेंटेशन देंगे लास्ट वैल्यू को into t raised to 3 by 2 as it is. Further we have to simplify this part as a e raised to 4 into e raised to minus 4t. देखो ये 3 by 2 है 1 by 2 है, ऊपर चले जाएगा ये पार्ट, तो मैं इसको लिखता हूँ 4 अपॉन 3 into root of pi. Always remember gamma of half is we written that is root of pi.
सो टी रेस टू 3/2 केप्ट एज इट इज। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 3/4 आएगा, उल्टा करोगे तो 4/3 हो जाएगा वैल्यू। सो यू गेटिंग दैट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन। इज फंक्शन क्या था हमारा, ई रेस टू 4 अपॉन एस प्लस 4 रेस टू पावर 5/2। फर्दर वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट और वी हैव टू राइट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमारा क्वेश्चन क्या था देखो, ई रेस टू 4 माइनस 3s अपॉन s प्लस 4 रेस टू पावर 5/2 विच इज इक्वल टू, पूरा सम एज इट इज लिखना है आपको, खाली t के जगह पे t माइनस है। अभी हमारा a क्या था, a यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि a इज इक्वल टू a था हमारा। तो 4 इंटू ई रेस टू 4/3 इंटू रूट ऑफ पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, इंटू ई रेस टू माइनस 4 टी माइनस ए मतलब 3 टी माइनस ए इंटू टी माइनस ए, जिधर भी टी है उधर टी माइनस ए, पावर इज एज इट इज 3/2 और लास्ट में इंटू हेवी साइड ऑफ टी माइनस ए मीन्स t-3 और ये हमको मिलता है। लेकिन फर्दर ये सिंप्लीफिकेशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट 4 है और यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये टर्म फिर से सिंप्लीफिकेशन करके हमको मिलता है रिजल्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये दोनों इसको साइड में कर देता हूँ, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ई रेस टू माइनस 4t अपॉन 3 इंटू रूट ऑफ पाई इंटू, देखो ये ई रेस टू 4 है, ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो +12 हो जाएगा। सो यू कैन टेक, और अगर नहीं समझ में आता है तो सीधा सिंपल कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो भी हम लिख सकते हैं इस पार्ट को डायरेक्टली ऐसा, ई रेस टू या 4/√3 एज इट इज, ई रेस टू एज इट इज, आई एम टेकिंग -4 एज अ कॉमन फैक्टर, -4 कॉमन फैक्टर ले लोगे यहाँ से तो ये क्या बचेगा आपका, ये तो आपका टी एज इट इज है, ठीक है, -4t आपको मिलता है तो टी एज इट इज, और ये माइनस आपका एज इट इज है, देखो माइनस, लेकिन आपने क्या कॉमन ले लिया है -4, तो देखो अच्छी तरह से देखोगे तो -4 इंटू, या बेटर है कि सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखें, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन जनरेट होगा इस चीज़ के लिए। सो वी हैव टू राइट एज इट इज़ ई रेस टू 4 इंटू ई रेस टू -4t इंटू ई रेस टू 12 इंटू टी माइनस 3 रेस टू पावर 3/2 इंटू हेवी साइड ऑफ t-3 एज इट इज़। अभी लास्ट में वही सिंप्लीफिकेशन जो मैं डायरेक्ट लिख रहा था, 4/3 इंटू रूट ऑफ पाई एज इट इज, ई रेस टू -4 अगर मैं इस तरह से कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये 4 + 12 दैट इज 16 हो जाएगा, और वही चीज़ हमारा है इंटू t-3 रेस टू पावर 3/2 इंटू हेवी साइड ऑफ t-3। तो ये हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है। इसको सिर्फ इतनी, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिखते हो तो भी फुल मार्क्स मिलता है। थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ इस सम को, इसमें वर्क क्या किया गया है। क्वेश्चन दिया है उसको कंपेयर करो, ई रेस टू माइनस एस इज कंपेयर्ड बाई ई रेस टू -3s, सिंप्लीफाई करके a इक्वल टू यू विल गेटिंग इज अ 3। फर्दर एफ ऑफ एस को एज इट इज रखा है, लाप्लास इनवर्स यहाँ पे अप्लाई कर दो, ई रेस टू 4 आउटसाइड s प्लस 4 है तो ई रेस टू -4t आउट हो जाएगा, बचेगा ये टर्म। हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने देखा है, लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1। अभी यहाँ पे s रेस टू 5/2 है, मतलब ऊपर कितना होना चाहिए 5/2, जो भी वैल्यू पावर रहेगा s का उससे एक कम, मतलब 5/2 -1 करोगे तो यू विल गेटिंग व्हाट 3/2, तो 3/2 फैक्टोरियल आना चाहिए। अभी 3/2 फैक्टोरियल जनरली हम लोग लिखते नहीं है, तो 3/2 फैक्टोरियल को हम लोग जनरली गामा फंक्शन से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज द गामा ऑफ 3/2। तो गामा ऑफ 3/2 ऊपर रहना चाहिए, वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग गामा ऑफ 3/2 से मल्टीप्लाई भी करोगे डिवाइड भी करोगे। गामा ऑफ 3/2 जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 3n इंटू n-1 है फॉर्मूला, बट लास्ट में जो निगेटिव वैल्यू आपको मिलता है उसको आप डायरेक्टली रूट पाई लिखते हो। तो जैसे यहाँ पे 5/2 को दिया है 5/2 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई, सिमिलरली 3/2 1/2 इंटू रूट ऑफ पाई, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये पार्ट हमको डायरेक्टली t रेस टू 3/2 होगा, t रेस टू 3/2 का लाप्लास आपको यही देगा,
वो चीज़ हमको मिल गया, इसलिए हम लोग इसका इनवर्स लाप्लास डायरेक्टली टी रेस टू 3/2 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। लेटर ऑन जस्ट वी सिंप्लीफाई दिस गामा ऑफ 3/2, जो फैक्टोरियल का रूल है, n फैक्टोरियल इज n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, जो अप्लाई करते हो आप वही चीज़ से जाना है। लेकिन जैसे निगेटिव वैल्यू आ जाता है, क्योंकि हाफ के बाद जब आप रिड्यूस करोगे -1, तो आपको -1/2 मिलेगा, एंड दैट वैल्यू यू कैन राइट एज अ रूट ऑफ पाई। इधर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया। लास्ट में जब भी हेवी साइड का सम है, हेवी साइड के सम जब भी सिंप्लीफाई करोगे तो जिधर भी टी है, जहाँ पे भी टी प्रेजेंट है, यू हैव टू राइट t-a। जहाँ भी टी प्रेजेंट है वहाँ पे आप t-a रखोगे। जैसे हमको रिजल्ट ये आता है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो इधर t-a हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे और इनटू पूरे रिजल्ट को इनटू हेवी साइड ऑफ t-a सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो होप थिंग्स आर क्लियर। ये तो सिंप्लीफिकेशन टर्म है, बहुत इजी टर्म है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे e⁴ था, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ऐसा दिखाया, या आप डायरेक्ट -4 कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके ये स्टेप अगर लिखते हो तो भी आप तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू मूव। वन s+1 e⁻s अपॉन s² प्लस s प्लस 1। सो कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहला वर्क एक ही है, दैट इज यू हैव टू स्टार्ट विद द कंपैरिजन। ये विदाउट कंपैरिजन आपको वैल्यू नहीं आएगा। सो वी हैव टू कंपेयर विद पार्ट विद कंपैरिजन करेंगे e⁻as इंटू एफ ऑफ एस के साथ। तो e⁻as इज कंपेयर्ड विद e⁻s, तो ए क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि -1 है यहाँ पे, -1 इज कंपेयर्ड विद दिस पार्ट। सो एफ ऑफ एस आपका क्या हो जाता है, s+1 अपॉन s² प्लस s प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दो इस पार्ट को, तो s+1 यहाँ पे है, मतलब वो एक्सपोनेंशियली, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के जैसे हमको बता रहा है, दैट इज वी हैव टू टेक अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बट हियर इज अगेन s² प्लस s प्लस 1, तो यहाँ पे भी s² प्लस s प्लस 1 है, मतलब यहाँ पे भी कुछ छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है हमारे लिए, तो वी हैव टू यूज दैट पार्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे s है और ये 1 दिया है, मतलब इसको तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो डायरेक्टली, मतलब कैसा मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप। 1 लाना है, तो अगर मैं 1/4 प्लस 3/4 लिखूं, 1/4 प्लस 3/4, तो उसका रिजल्ट भी 1 ही आता है। ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे s है, इसलिए 1/4 यहाँ पे लिखा हूँ। मतलब इस पार्ट को अगर मैं ऐसा लिखूं, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2s, तो हो नहीं सकता है पार्ट, तो s+1 एज इट इज अपॉन, आई एम जस्ट राइटिंग s+1/2 रेज टू पावर 2 प्लस 3/4। तो सिंप्लीफाई अगर करोगे इसको, तो a² मतलब s² प्लस 2ab मतलब 2s इंटू हाफ, तो 2 कैंसिल होके s मिलेगा, और प्लस आपको क्या मिलेगा 1/4, तो 1/4 प्लस 3/4 बाय डिफॉल्ट फिर से आपको 1 मिलेगा। इसकी वजह से वो न्यूमरेटर में वो वर्क किया है हमने। सिमिलरली ये पार्ट जो है हमारा, इसको भी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ s+1/2 प्लस 1/2 अपॉन s प्लस हाफ रेज टू पावर 2 प्लस 3/4 एज इट इज, 3/4 एज इट इज मैंने लिखा। अभी देखो इधर s प्लस हाफ है, तो वी कैन टेक सेपरेट, और वी कैन जस्ट सेपरेट दिस पार्ट डायरेक्टली e⁻½ निकाल सकते हो -हाफ। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ
एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट निकालोगे तो आपका पार्ट हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी बाय टू, ठीक है, प्लस हाफ है। रिमेनिंग क्या बचेगा आपका, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस, रिमेनिंग टर्म्स विल बी एस प्लस हाफ अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3/4 को मैं ऐसा लिखता हूँ √3/2 रेस टू पावर 2। सो यू विल अंडरस्टैंड कैसा मिलता है। अभी मैं क्या करता हूँ, एस प्लस Your हाफ mobile device has lost connection to the internet. Please try again a bit later. जस्ट, so the remaining term will becomes s plus half upon s square plus √3/2 raised to power 2। अभी फिर से s प्लस हाफ दिख रहा है तो क्वेश्चन नहीं अराइज करने का कि फिर से s प्लस हाफ आएगा मतलब फिर से निकलेगा, अब पॉसिबल ही नहीं है। इधर से s प्लस हाफ दिख रहा है लेकिन यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, तो इधर फिर से सिंप्लीफिकेशन आप कर लो, सेपरेट कर दो दोनों पार्ट को। लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस which is equal to e raised to minus t/2 as it is, and Laplace inverse of, एक टर्म लिखता हूँ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3/2 रेस टू पावर 2, और एक टर्म आएगा प्लस 1/2 अपॉन, या 1/2 को आगे लिख सकते हो आपको लिखना है तो, प्लस 1/2 आउटसाइड, रिमेनिंग इज वॉट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3/2 रेस टू पावर 2 टाइम। ये तो डायरेक्ट कॉसाइन का लाप्लास आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा साइन के लाप्लास के लिए। दिस मीन्स व्हाट, ये तो हमारे पास है 2, तो मैं इसको क्या करता हूँ ई रेस टू माइनस t/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3/2 रेस टू पावर 2 टाइम्स प्लस, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है तो व्हाट आई अप्लाई हियर, 1/2 को ऐसे ही रख देता हूँ फिलहाल के लिए, 1/2 एज इट इज़, मैं 2/√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2/√3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3/2 रेस टू पावर 2 टाइम्स एज इट इज, सो दैट वी कैन राइट दिस पार्ट। ये हम लोग को डायरेक्टली, एक मिनट, 2/√3 में उल्टा मैंने लिख दिया है, So only we have to multiply and divide by √3. No? या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वी कैन अप्लाई, ये वो 2 को भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फाइनली बाद में कैंसिल ही हो जाता है उसमें भी, तो मैंने खाली वो लिख दिया है। तो इफ़ यू वांट दैट इज अ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3, तो यू कैन अप्लाई ऑल्सो दिस पार्ट, सो दैट वी विल गेट दैट इज 2/√3। तो यहाँ पे ऐसा 1/√3 लिख दो, 2 को इनसाइड फिट कर देता हूँ मैं, सो दैट विल अंडरस्टैंड 1/√3 एज इट इज। तो ये 1/2 हम लोग यहाँ पे जैसे ही फिट करेंगे तो इट विल बिकम्स √3/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3/2 रेस टू पावर 2 टाइम्स। सो होप थिंग्स आर क्लियर, दैट इज √3 गेट कैंसल, 1/2 फिर से आपको वो टर्म मिलेगा, वो जो चीज़ मैं लिखा था वो चीज़ भी वही था, खाली बाद में 2 के कैंसिल होके फिर से यही टर्म मिलता, बट ये ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 न्यूमरेटर में भेज दो और √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड आपने यहाँ पे किया है। So this things directly we will get, that is in terms of sign, so e raised to minus t into, what is the Laplace inverse of this part is a cos of, see that √3/2 is there, so I'm just taking that is a √3/2 into t plus 1/√3 as it is,
1 by root 3 as it is. So remaining term will becomes what? Sine of root 3 by 2 इंटू टी. ये हमारा लाप्लास होता है इसका, वो एफ ऑफ एस वाले मतलब में सिर्फ फंक्शन था. अभी हेवी साइड यूनिट स्टेप पार्ट दिया है, सो यू हैव टू राइट लास्ट, दैट इज अ लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस वन इंटू ई रेस टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन. सो जहाँ पे भी टी आपको दिख रहा है वहाँ पे टी माइनस ए करना है. अभी ए क्या है, इधर वन है, सो ई रेस टू minus as it is, you have to take and take t minus 1, t minus 1. So we just taken t minus 1 था कि t t by 2 था ना. So t minus 1 by 2 into cos of root 3 by 2 as it is, t minus 1 क्योंकि a 1 है, प्लस 1 by root 3 into sine of root 3 by 2 t minus 1 into हेवी साइड ऑफ t माइनस वन. ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है. जस्ट यू हैव टू अप्लाई एज इट इज, रूट थ्री बाई टू इंटू टी माइनस वन, रूट थ्री बाई टू इंटू टी माइनस, मतलब टी माइनस से अप्लाई करना है आपको फाइनल रिजल्ट में. फर्दर सिंप्लीफिकेशन का कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करने की कोई मतलब ज़रूरत है कि हम लोग लॉ अप्लाई करते हैं सॉल्व, नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं. वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू सी here, because I think this is the third questions we have to finish today itself, and from tomorrow or day after tomorrow onwards we will start the next module. This is the last topic which I have to cover. Few topics are given for the self study. Self study part are not going to ask in examination or either in unit test or either in your final same examination self, because self study parts are periodic functions, Dirac delta functions, error functions. तो वो पार्ट आपको सेल्फ स्टडी करना है, वो पार्ट आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. Okay, now we'll move ahead with the next question. Fourth one, s into e raised to minus s upon s square plus 3s plus 2. So we have to compare करोगे इसको तो e raised to minus s into f of s, e raised to minus s into f of s. So e raised to minus s compared with e raised to minus as, therefore a is equal to, you will getting a only, a का वैल्यू a ही आपको यहाँ पे मिल रहा है. So now we have to simplify f of s, which is equal to s upon s square plus 3s plus 2. अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका रिजल्ट हमको लाना है. ऐसे लाएंगे, थोड़ा सा आइडिया दो. एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s है यहाँ पे, 3s और प्लस 2, तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है कुछ वर्कआउट करना है हमको. क्या कर सकते हैं, एनी वन, एनी आइडिया? एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. थ्री एस है, इसके लिए कंफ्यूजन, 3s नहीं होना चाहिए यहाँ पे. बेसिकली क्वेश्चन का कुछ इफेक्ट है. According to my opinion, s square plus 3s, it is not possible to create any a plus b the whole square formula, or there is any possibilities, so you can suggest me, because s square plus s plus 1 we can create s square plus 2s. So s plus 2, no, s plus 2 is also not possible here. So what we have to apply here, क्या कर सकते हैं, anyone?
कोई सजेस्ट करो, any formula, algebraic formula we have to utilize here. S upon s square plus 3s plus 2. In numerator, if suppose I have to apply plus 1 minus 1, so I will get s plus 1 the whole square. But in denominator, I will stuck. That is because s square plus 3s is given. तो अगर आप क्रिएट करना है हमको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 2s जनरेट होता है, दैट 2s s square plus 2s plus 1, that is defined, and we can take as a s plus 1. Anyway, we just hold here this question. Later I will just go with this question, and if there is any correction, we have to do a correction, or later I have to find the solution and will update post in a classroom. We'll move ahead with the next numerical. So there are various questions based on, we can say that, Heaviside unit step function. Just one more example I'm just taking. If fourth one, because this we stopped here, s into e raised to minus s by 2 plus pi into e raised to minus s upon s square plus pi square. क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, तो a जो है, a यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ a, मतलब a का दो वैल्यू मिलेगा। इसको आप डायरेक्ट एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हो ये क्वेश्चन, क्योंकि इसको आप सेपरेट करना पड़ेगा हमको। सेपरेट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई एम जस्ट टेकिंग सेपरेटिंग दिस पार्ट। लेट f1 ऑफ s इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखूं, s इंटू e रेज टू माइनस s बाई 2 upon s square plus pi square, and f2 of s which is equal to pi into e raised to minus s upon s square plus pi square। दोनों सेपरेट फंक्शन है। इसमें a इक्वल टू आपको 1/2 मिलता है, और इसमें a इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो दोनों को सेपरेटली आपको सॉल्व करना है, एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते हम इस पार्ट को। So we have to just simplify or compare with the f1 of s, or s into e raised to minus s by 2 upon s square plus pi square, compared with e raised to minus as into f of s. Therefore this part you will getting what, e raised to a is equal to, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। फंक्शन इसके लिए क्या हो जाता है आपका, f of s यहाँ पे हो जाएगा आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई इंटू टी। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू आपको 1 मिलता है। लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन अगर लोगे आप यहाँ पे, सो यू विल गेटिंग पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, so that you will getting Laplace inverse of this function which is equal to साइन ऑफ पाई टी। एट द एंड लास्ट में रिजल्ट हमको कंबाइन करके लिखना है, तो लिख सकते हैं हम। इसमें जब हम लोग लिखेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ
s into e raised to minus s by 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। इसमें लिखोगे तो आपको लिखना होगा cos ऑफ पाई इंटू टी माइनस हाफ इंटू हेवी साइड ऑफ टी माइनस हाफ। और इसमें जब आप रिजल्ट साथ में लिखना है आपको लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या था, पाई इंटू ई रेस टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। So you have to write sine of pi t minus 1 into heavy side of t minus 1 t minus 1. So you're getting this part, ये चीज़ हमको मिल जाता है। तो ये हमारा रिजल्ट है। दोनों रिजल्ट अगर चाहिए तो हम ऐड करके लिख सकते हैं, कंबाइन करके, और kept as it is separate। तो सेपरेटली भी अगर लिखते हो तो कोई तभी भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। खाली अंडरस्टैंडिंग करो कि एक साथ मत जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि एक इसको लें, वन को लें या हाफ को लें। सो दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड इवन इफ यू सी। एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस, दैट इज फिफ्थ वन। s into e raised to minus 3s upon s square minus 1। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट कंपेयरिंग विद दैट इज e raised to minus 3s is compared with e raised to minus as, therefore we are getting a is equal to 3। so remaining is f of s which is equal to s upon s square minus 1। सिंप्लीफाई करना है, इसका लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट करना है। s अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 का लाप्लास क्या आ जाएगा, एनीवन? cos hyperbolic t. Cos hyperbolic t, very good। So you can just see that is the Laplace inverse of that respective function is cos hyperbolic। So we can write that is a Laplace inverse of f of s which is equal to cos of hyperbolic of t। At the end you have to just substitute, so Laplace inverse of s into e raised to minus 3s upon s square minus 1 which is equal to cos of hyperbolic of t minus 3 into हेवी साइड ऑफ t माइनस 3। ये आपका रिजल्ट आता है। तो 2-3 स्टेप में सम आ जाता है। बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कोई क्वेश्चन 8 मार्क्स का जब उसको सब टॉपिक डिवाइड किया जाता है 4-4 का, या क्वेश्चन नंबर 6 जो भी क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं उसको समटाइम्स 3-3 मार्क्स के लिए डिवीजन होता है जब, तो ऐसे टाइम पे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, एक आध छोटा क्वेश्चन उसमें ऐड करके। हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। दोनों जो पार्ट हैं आपके, एक पार्ट आपका इफ यू रिमेंबर दैट इज अ यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड द सेकंड पार्ट इज हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। दोनों you can easily know that is how to tackle such a questions or how to solve। why? Because in that terms you must remember that is a log, tan inverse, cot inverse और tan hyperbolic inverse, log वगैरह फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिलता है। and here you can see that is the question is formatted with e raised to minus as into f of s। क्वेश्चन का फॉर्मेट ही आपका e raised to minus as into f of s में होगा। so if such a formats are comes in examination, because उधर ऐसा रहेगा नहीं लिखा हुआ कि by using heavy side unit step function, you must see and check whether the question belongs to e raised to heavy side unit step function or what। so we have to utilize such a kind of technique or formula and we have to solve। rest methods are same as it is, the only method is you have to compute the value of a and h of t minus a and heavy side of t minus a। यही चीज़ आपके लिए है, हेवी साइड ऑफ t माइनस ए एंड t माइनस ए। ये दो चीज़ एक्स्ट्रा वर्क करना रहता है। बाकी लाप्लास इनवर्स तो हर एक पार्ट में आपने सॉल्व किया है, कैलकुलेट किया है। convolution inverse of Laplace transform, if you see inverse of Laplace transform, so there are
Total, the first method we learned, that is a convolution. Second is uses of differentiation. Third, I taught about, that is application of a Laplace transform. In that method, you learn two methods. The first one is a application basis method, that is Ly double dash, Ly triple dash, Ly dash, and the second method you learn about what, that is a partial fraction method of a partial fraction, how to tackle or how to solve a partial fraction questions. So for partial fraction questions, you must simplify the terms in a partial fraction manner. पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, ए बी सी डी जो वैल्यू है निकालो, और बाद में एट द एंड लाप्लास इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है. द लास्ट मेथड यू लर्न दैट इज अ हेवी साइज यूनिट स्टेप फंक्शन. So from my point of view and according to syllabus point of view, that is our Laplace transform 1 and Laplace transform 2, that is inverse of Laplace transform, both are completed. Whatever the syllabus is given for teachers to teach, these topics are covered. Only the self studies or self assessment, self understanding concepts or self understanding parts are remaining. So you must go through with the textbook. Already I uploaded in a Google Classroom. So you must go through with that, because on only such a topics you have to perform a mini project, not for this part. In a syllabus, it is clearly written the mini project is based on the self learning, not for these topics which I have supposed to taught. So from next lecture onwards, I'm going to start. The next topic is complex variable and conformal mapping. So complex variable I'm going to start. So you must go through with this all video till the date, till last lectures I uploaded on in a Google Classroom. So you must go through and just check all the videos, and if you have to try to solve many more examples, or because book already I uploaded, so you just go through with the textbooks and try to solve maximum numericals on the basis of a Laplace transform, because Laplace transform and inverse of Laplace transform near about carrying 30 marks from your syllabus, or it is a huge chapter, huge module, because one more module is a very lengthy, and that module name is a Fourier series. Fourier series और कॉम्प्लेक्स Fourier series और लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ऐसे मॉड्यूल हैं कि दो मॉड्यूल अगर आप करते हो तो 60%, 50 to 60% मार्क्स ये दो मॉड्यूल से आपको पूछे जाते हैं. मतलब योर पेपर इज नियर अबाउट 120 मार्क्स, एंड दैट 120 मार्क्स 60 मार्क्स, कम से कम 60 मार्क्स तो ये दो मॉड्यूल आपको पूछे जाते हैं. 60 एकदम कम से कम बता रहा हूँ, बट आप पेपर देखोगे जो आने वाला पेपर रहेगा आपके लिए, जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आप खुद बोलोगे कि 70 मार्क्स या 80 मार्क्स तक का कभी कभी दोनों मॉड्यूल से पूछा. बिकॉज फूरियर सीरीज एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे दो मॉड्यूल हैं जिसमें जिसके क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नंबर नहीं बचता है जिसमें ना पूछे जाए. क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6, all questions carrying a Fourier series model and Laplace and inverse Laplace. Laplace and inverse Laplace both are the dependent in each other. Even Fourier series is also a very easy topic. It is totally based on a that is a integration by parts. So we'll start after completion of a complex variable. So पहले हम complex variable compare करेंगे, and if the college will going to be start your first internal assessment test, syllabus is Laplace transform and complex variable. So please kept in mind whether the IIT one will be physically or digitally. मतलब यहाँ पे हो अपने दोनों मॉड्यूल लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल IIT वन के लिए होगा. अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोला तो उसमें ये नहीं क्वेश्चन करने का कि इनवर्स है या नहीं है. इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कंसीडर करके बोला जा रहा है, because complex variable also carrying 1 2 chapters, complex variable and a conformal mapping. So you must understand if I say that is a module 1 and 2, तो उस बेसिस पे आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है. Now anyone having any doubts you can ask me, because very less number of students are present in a lecture. These things are not going to be acceptable, because there is a daily attendance monitoring is going on. So please be present in a lecture. Just a second, taking the attendance.
And if anyone having any doubts, so you can ask me right now and try to study as soon as possible. ये नहीं कि फिर से एग्ज़ाम आएगा, इस बार का एग्ज़ाम स्किप नहीं होगा. प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग. इस बार का एग्ज़ाम स्किप नहीं होगा. ये बार हो गया था, आप लोग किस्मत वाले हो. दैट इज़ द एग्ज़ाम्स आर स्किप्ड एंड यू आर इन सेम 3 डायरेक्टली. बट उसमें भी ऑप्शन दिया है आपको कि अगर किसी को कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स, ऐसा कुछ डाउट है, so you can ask to your, you can ask once the college started and you can attempt the examinations. So if anyone feeling that is कि M2 में कम मार्क्स आ गया है, 32, 35, 40 ऐसा आया है एंड 80 में से 80 आ सकता था, तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. It will help. Now anyone having any doubts, or I can call a name because our first module is going to over. Anyone, किसी को कुछ डाउट है? कन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत अच्छे से मेहनत करो. कन्वोल्यूशन थ्योरम में ऑलरेडी बहुत सारा एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया है. 6 मार्क्स 101%. 101% मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं आएगा. सेकेंड, उसके बाद आप अप्लीकेशन ऑफ अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से करो. 8 मार्क्स आपको श्योर शॉर्ट 8 मार्क्स के लिए पूछेगा. 8 + 6 14 होता है. मल्टीप्लीकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी में से कोई भी एक 6 मार्क्स के लिए 101% पूछा जाता है. तो 8 + 6 + 6 मीन्स 20 मार्क्स हो गया. रिमेनिंग दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. ये दोनों में से कोई एक 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स और समटाइम 5 मार्क्स पूछा जाता है. 5 मार्क्स के लिए अगर पूछता है तो 25 मार्क्स हो जाता है. रिमेनिंग ये जो हमने पढ़ा है, डिफरेंट यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, ये दोनों में से कोई एक 6 मार्क्स मैक्सिमम पूछ सकता है या फिर 4 मार्क्स के लिए आता है. सपोज अगर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा है या 5 मार्क्स के लिए पूछा है, तो आपको 6 मार्क्स के लिए ये दोनों चैप्टर में टॉपिक में से आएगा, uses of differentiation and heaviside unit step function. So please remember these things. Next module I'm going to start. Just wait 1 minute. SCIT final syllabus. Now I just shared with the syllabus. That is Engineering Mathematics 3. See, the part is clearly given. Self-learning. Wait. Definition of inverse Laplace transform, linearity property, inverse Laplace transform, standard functions using derivatives, partial functions method to find inverse Laplace or inverse Laplace transform using convolution theorem. I will take one more lecture on the basis of a partial fractions. एक मैं lecture लूँगा जिसमें और 2-5 questions हम लोग partial fractions के solve करेंगे. Even here Laplace, see, Laplace transform, periodic function, Heaviside unit step function, Dirac delta function, special functions, error and Bessel's functions. These are your self-learning topics. So please go with the self-learning and see the complex variable module. The self-learning topics are conformal mapping, linear and bilinear across ratio this part. So only we have to learn a complex variable. Now the syllabus is again a compressed किया गया है syllabus. पहले जो सेल्फ लर्निंग टॉपिक थे वो आपके टॉपिक्स को पढ़ाना पड़ता था, उसके ऊपर भी आपको एग्जाम में पूछा जाता था. बट अभी ऐसा नहीं, अभी और इजी किया है सिलेबस को, तो उसका बेनिफिट लो, अच्छे से स्टडी करो मैक्सिमम क्वेश्चंस को. नाउ विल गो मूव विथ दिस मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल.
Okay, because already you people are familiar with the complex number. So this is just the upgraded version or upgraded syllabus of a complex number. Only you have to learn about the variables here, because complex number, अगर पूछूं definitions, so what is complex number? Complex number is a combination of a real part and imaginary values or imaginary parts. It is the basic definition of a complex number, like a plus ib or x plus iy or e raised to I theta in terms of a exponential, or cos theta plus I sin theta in terms of a trigonometric representation. So, but here we have to learn about the complex variable, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो इसमें ये देख के डरने का नहीं है कि फिर से लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव हमको पढ़ना है. नहीं, कंटिन्यूटी लिमिट एंड डेरिवेटिव के ऊपर कुछ नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर के लिमिटेशन है, कुछ स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है. सो we have to study first about the complex variable. What is a complex variable? Always remember, complex है मतलब real और imaginary का वर्डिंग होने वाला है, यहाँ पे डिस्कशन होने ही वाला है. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है एक मॉड्यूल, बहुत सिंपल मॉड्यूल है, एंड प्रोबेबिलिटी मॉड्यूल है. सिलेबस बहुत छोटा है और सिंपल, स्वीट एंड सिंपल है, अच्छे से स्कोर कर सकते हो आप. फूरियर सीरीज है यहाँ पे एक बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा इसलिए है क्योंकि लेंदी है, उसके सम जब हम सॉल्व करते हैं तो काफ़ी लेंदी सम है कि 6 पेज भर जाएं एक एक सॉल्यूशंस के लिए. ऐसे भी होते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन है, फंक्शंस अगर बड़े आ जाते हैं तो इंटीग्रेशन बाय डिफॉल्ट बड़ा होता है. So tomorrow or day after tomorrow I will take one more lecture on the basis of a partial fractions, and later we will decide, we will start about the complex variable topic. Now anyone having any doubts, you can ask me right now, so I can explain about the Laplace transform of Heaviside or whatever, any doubts if you are having, or just go through with the all the videos, all सभी videos के साथ एक बार go through करो और देखो उसमें से डाउट अगर कोई जनरेट होते हैं तो डाउट लो. और बुक्स है आपके पास क्लासरूम पे, वो क्लासरूम्स के बुक्स आप सॉल्व करो उसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी दैट इज a doubts or a problems or error, you will get a something problem or error. विदाउट प्रॉब्लम और एरर आपको नहीं मतलब पता चलेगा कि किस तरह सॉल्यूशन करना है, किस तरह सॉल्व करना है. एनीवे, so we can stop here. See you by Thursday. Yes, Thursday. Thank you.